President of India Draupadi Murmu on Thursday addressed the parliament for the first time since the formation of the new government of the centre. Shiv Sena UBT Sanjay Rawat stated that this was no longer a presidential address. Whatever Modi wants will come out of the president's speech. The opposition has also hit out at a statement made by the president on 49-year-old emergency. Congress MP Shashi Tharoor said there was no logic of talking about it after 49 years. He said the president should have talked about today's issue, but there was nothing about need, unemployment or Manipur. AIMIM MP Azharuddin Owaisi said in this entire address there was no mention of minorities or unemployment. Let's have a look at some political reactions from the opposition. ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। प्रेसिडेंट ने कहा कि ये ठीक है और स्टेबल, ये कोई मेजोरिटी नहीं है, ये बैसाखी पे चल रही सरकार है। जितने दिन चलती है चलने देंगे। उन्होंने इमरजेंसी 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी लगी है, वो निकालो। 77 से लेकर आज तक राज्यपाल का अभिभाषण में असेंबली में और महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण लोकसभा में और राज्यसभा में, मुझे क्षमा करेंगे लेकिन जो उम्मीद थी और जिस भावना के साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है, मुझे निराशा हुई। ऐसी बातें कही गई जिनका कि कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। लगता है कि प्रधानमंत्री जी को जनमत का कोई असर नहीं हुआ। आपातकाल की बात जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में थी, इसको कैसे देखते हैं सर? मैं वही बात कर रहा हूं। राहुल गांधी met with the लोकसभा स्पीकर today. What was the discussion? Because the speaker today already declared Rahul Gandhi ji as an opposition leader officially in the house. It is a courtesy from Rahul Gandhi ji sir to meet speaker and greet him. And was there any discussion about the yesterday's remarks that because opposition objected to that also? It's okay. Certainly during the discussion, leader of opposition raised that issue. It could have been avoided yesterday. From the speaker's mouth, this type of political statement will not give a clear-cut message for cooperation. So, your comment on the president address today, sir? Because in the president address today, this was... What is nothing is there. What was in the president's address to comment? This same as old president's address, last year president's address. Nothing is there. Old schemes, everything is repeated. Nothing new. No expectation for the people of this country. No expectation for the youth of this country. No expectation for the farmers of the country. No expectation for the women of this country. Nothing is there. Emergency was also discussed. That's only one political jumlas only. Political jumlas only. Nothing else. पहले तो ये है कि बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज़ माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा ये है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है।
भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। इमरजेंसी की भी बात की है, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है, एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। देखिए, मैं यही कह रहा था कि राष्ट्रपति जी सरकारी भाषण दे दिए तो नॉर्मल है, सरकार के ही सारे मुद्दे वो लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में होंगे। लेकिन इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। आज के मुद्दे के बारे में बोलना चाहिए था। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए, तो बड़ी जरूरी विषय है। और आपको ये भी मालूम है कि मणिपुर, इस शब्द तो ना प्रधानमंत्री के मुंह से निकला ना राष्ट्रपति जी से। ये बड़ी जरूरी है कि इस किस्म के विषय, चीन के सीमा से में क्या हो रहा है, बहुत बड़े विषय हमारे देश में है जो हम उठाना चाहते हैं हमारे देश में। और ये उठाने के लिए सरकार इस भाषण को इस्तेमाल कर सकते थे। हमारे जवाब में तो नेचुरली प्रतिपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मुद्दे हम ऐसे भी बताएं जनता को जो संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई है। बस यही बात, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि इस किस्म की मैनेजमेंट क्यों इतना बुरा हुआ इस बार। आपको पता है कि कभी कभी पोस्टपोन होता है, कभी कभी कैंसिल होता है, कभी कभी परीक्षा चलती है, किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। ये सारे विषय पे हमको अच्छी जानकारी चाहिए।